اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک پر۔ پروگرام تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یہ تحلیلی جائزہ در حقیقت مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی حفظہ اللہ کے اس خطاب کے پس منظر میں ہے جو انہوں نے 1447 ہجری کے ماہ محرم الحرام کے عنوان سے کچھ نکات اور کچھ فرمائشات مبلغین کے مجمع میں اور عموم مومنین کے لیے بھی یقیناً یہ نکات تھے، اس کو پیش کیا، اور آج ہم اس عنوان سے اردو زبان میں تحلیلی جائزہ اس کا پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 13 سے 14 مہم نکات کے اوپر گفتگو ہوئی، اور یقیناً جو بھی نکات تھے نہایت ہی مفید مخصوصاً مبلغین کے لیے اور عموم مومنین کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ حضرت مرجع نے ابتدا میں خطبہ حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے ابتدا کی۔ در حقیقت وہ خطبہ جو حضرت نے کربلا میں لشکر اشقیاء کے سامنے، اور جہاں پر یقیناً دوسرے بھی بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، اقل روایت جو ہے وہ 30,000 لوگ اس موقع پر موجود تھے جب حضرت نے یہ خطبہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس میں سے سب سے پہلے جو خطبے کے جملے ہیں ابتدائی، سید المرجع نے فرمایا کہ حضرت سب سے پہلے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت نے دعا حسین براحلتہ، سب سے پہلے حضرت نے اپنے گھوڑے کو، اپنے سواری کو منگوایا، اور فرکبہا ونادا بأعلی صوت، اس کے اوپر سوار ہوئے اور بآواز بلند جہاں تک ہو سکتا تھا حضرت نے آواز دی تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ان تک میری آواز پہنچے، اور کلمہ ایھا الناس سے ابتدا کی۔ اور یہاں پر جو پہلا نقطہ ہے وہ خود یہی کلمہ ایھا الناس ہے۔ بظاہر حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو لشکر اشقیاء کی صورت میں اس دور کے یزید ابن سعد اور یزید لعنت اللہ علیہم، ان لوگوں کا لشکر ہے، اور حضرت ان سے مخاطب ہے ایھا الناس کے ساتھ۔ ایھا الناس سے کیا مراد ہے؟ صرف یہی لوگ مراد ہے جو سامنے ہے، یا اس سے مراد پوری بشریت ہے؟ جس طریقے سے سید المرجع نے فرمایا کہ آج کے اس دور میں 8 ارب لوگ ہے، 8 ارب لوگ کی آبادی ہے، اور اس واقعے کو 1400 سال گزر چکے ہیں۔ البتہ اس سے پہلے میں یہ نقطہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جس کے اوپر بارہا اشارہ فرما چکے ہیں مرجعیت کی طرف سے، کہ ایھا الناس قرآن مجید کی اصطلاح بھی ہے۔ وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح بھی ایھا الناس ہے، اور رسول اللہ کے خطبے میں بھی جو خطبہ ہے، خطبات میں وہاں پر بھی ایھا الناس کا استعمال ہے، یا خطبہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا جو خلیفہ کے دربار میں جو گفتگو ہوئی ہے وہاں پر بھی ایھا الناس موجود ہے، یا خود امیر المومنین علیہ السلام کے بارہا نہج البلاغہ اور غیر نہج البلاغہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہی اصطلاح جو ہے وہ خطبہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں بھی ہے کہ جہاں ابتدا ایھا الناس سے کی جا رہی ہے۔ سید المرجع نے اس حوالے سے فرمایا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کلام اہل البیت علیہم السلام کو دنیا والوں تک پہنچائیں، اور بارہا اس چیز پر تذکرہ فرما چکے ہیں کہ چونکہ تبلیغ بذات خود، یعنی خود یہ فرمائشات بنفس
बेनफ्सिही वाजिब किफ़ाई अमल है। और वाजिब किफ़ाई के बारे में आप जानते हैं कि वाजिब किफ़ाई जैसे एक शख्स जो है वो सलात मैयत के लिए अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो ये बेज़ात ख़ुद वाजिब किफ़ाई है। पूरे मुसलमानों में से अगर एक शख्स उठ जाए और वो इस नमाज को अदा करे तो जो वाजिब किफ़ाई अमल है वो दूसरे मुसलमानों से साक़ित हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है मुसलमानों में से कोई भी नहीं उठा, एक मुसलमान फौत हो चुका है और बाकी मुसलमान जो है वो सारे बैठे हैं, कोई मुसलमान इस वाजिब किफ़ाई अमल को अंजाम नहीं दे रहा, चूँकि मनफ़ीउल किफ़ाया जब तक नहीं होगी तो उस वक्त तक ये सब के सब मुसलमानों के ऊपर वाजिब है कि इसका अंजाम देना। यही है कि तबलीग ख़ुद बेज़ात ख़ुद तबलीग करना या मासूमीन अलैहिस्सलाम के सकाफ़त को, मासूमीन अलैहिस्सलाम के नुक्ते नज़र को पहुँचाना बेज़ात ख़ुद मुस्तहब है, यानी वाजिब किफ़ाई है। अगर कोई एक शख्स ये काम करे तो बाकियों से साक़ित हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये पूरे बशरियत तक नहीं पहुँची, फरमाया कि सब लोगों के ऊपर वाजिब है, उलमा और गैर उलमा के ऊपर हत्ता वाजिब है। गैर उलमा से मुराद ये है कि जहाँ तक वो कर सके, ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता एक शख्स जो है उसके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है, उसने कुछ ऐसी बातें की कि जो मज़हब के लिए मुफीद साबित ना हो। लेकिन बहरहाल अगर एक शख्स के पास इल्म नहीं है तो उसके पास दूसरे वसाइल होंगे कि जिसके ज़रिए से वो इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकता है। जैसे इंसान के पास ज़ाहिर है कि इल्म तो नहीं है, लेकिन उसके पास वसाइल है कि जिस वसाइल से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है, या उलमा के लिए ज़मीना साजी की जा सकती है कि उलमा आके उस चीज़ को पहुंचाए। बहरहाल इसमें हत्ता गैर उलमा का भी हिस्सा है, और उसके अलावा जो है जो रूहानियत से मुर्तबित लोग हैं जैसे हौज़ात इल्मिया और या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं या असातीद है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। फ़ी अय्य हाल तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि कलाम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को पहुँचाए, जिस तरीके से खुतबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कि जहाँ हज़रत ने इन लोगों के लिए भी आवाज़ बुलंद की और तमाम बशरियत के लिए बेआला सौतिन ऊपर और बुलंद आवाज़ के साथ हज़रत ने फरमाइशात पेश किए। यानी पस इस उन्वान से भी हम अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से हमें समझना चाहिए कि हम जो है इस हवाले से फ़रामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को लोगों तक पहुँचाए। ये एक नुक्ता था। और इसी खुतबे में जो दूसरा नुक्ता मरजइयत ने शरह बयान की, वो उसकी जो इसमें इब्तिदाई जुमलों में से जो दूसरा जुमला है अय्युहन्नास के बाद फरमाया कि अय्युहन्नास इस्माउ कौली हत्ता अइज़्ज़ुकुम बिमा यहिक्कु लकुम अलैया। फरमाया कि मेरे कलाम को आप लोग सुने, गौर करें मेरे कलाम के ऊपर, ताकि मैं तुम लोगों को नसीहत करूं उन चीज़ों की बिमा यहिक्कु लकुम, जो तुम लोगों का मेरे गर्दन के ऊपर हक़ है। यानी हत्ता ऐसे लोगों से हज़रत फरमा रहे हैं जो हज़रत के कत्ल के लिए आए हैं और कत्ल का इरादा कर रहे हैं, और इमाम अपने इल्म इमामत से जानते हैं कि ये लोग मुझे कत्ल करेंगे, जिसके बारे में हज़रत ने बारहा जो है वो इसके ऊपर पेशगोई कर चुके थे इमाम, हत्ता मदीने में, और फिर जब वहाँ से मक्का पहुँचे हैं, फिर मक्का से जो मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत का सफ़र है करबला तक, वहाँ भी हज़रत ने इस चीज़ की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया कि मैं करबला जा रहा हूँ, लेकिन करबला में मुझे शहीद किया जाएगा। और हत्ता रसूलुल्लाह ने इसकी पेशनगोई की थी, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसकी पेशनगोई फरमा चुके थे वग़ैरह। सब के लिए यह बात बिल्कुल आश्कार थी, और ख़ुसूसन ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मुर्तबित लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद होंगे, और ख़ुद इमाम भी बारहा इसकी तरफ इशारा फरमा चुके थे। यानी ये लोग जो सामने हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसका इल्म है कि
मेरी शहादत वाक़या होने वाली है। लेकिन इस जुमले से गोया कि इमाम फरमा रहे हैं कि आप लोगों का यहिक्कु लकुम अलैया, कि तुम लोगों का मेरे ऊपर हक़ है। यानी एक तरीके से कि गोया इमाम फरमा रहे हैं कि मैं वाज़ और नसीहत के हवाले से आप लोगों का मेरे ऊपर हक़ है कि मैं आप लोगों को आगाह करूं। गौर करें। और इससे सैयद अल-मरजा ने फरमाया कि अगर ये इस किस्म के लोग के जो वहशी है, जो खून हुज्जत खुदा को बहाना चाहते हैं, उसके हवाले से भी हज़रत फरमा रहे हैं कि आप लोगों का हक़ है मेरे ऊपर कि मैं आप लोगों को वाज़ करूं, आप लोगों को नसीहत करूं। गौर फरमाएं कि किस कदर आइज़्ज़कुम, यानी मैं आप लोगों को वाज़ और नसीहत करूं, हज़रत ने फरमाया। तो इस हवाले से फिर हम लोगों की क्या ज़िम्मेदारी होगी कि उन जाहिलीन का, जो लोग जाहिल है, जाहिल से मुराद यही है कि जो गैर आलिम है, किसी चीज़ का उसके ऊपर इल्म नहीं है, तो किस कदर ये हमारी ज़िम्मेदारी संगीन हो जाती है कि हम इन लोगों को आगाह करें। आगाही में हमारा हक़ है कि इन तक आगाही को पहुँचाए। और एक नुक्ता जो तीसरे नुक्ते के तौर पर मैं बयान करना चाहूँगा वो है कि किस हवाले से ये एक सवाल उठता है कि एक गैर आलिम, जिसको हम जाहिल से ताबीर कर रहे हैं, आलिम के ऊपर, आलिम उसको क्या सिखाएं, कितनी चीज़ों को जो है उनको सिखाना आलिम के ऊपर वाजिब है। तो उसमें से पहली चीज़ जो है वो है उसूल अक़ाइद का सिखाना। बहुत सारे मुबल्लिगीन जब जाते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तो वहाँ पर वो परेशान हो जाएंगे कि हमने सिखाना क्या है इन लोगों को। तो उसमें से पहली चीज़ ये है कि उसूल अक़ाइद को इन लोगों के लिए बाज़गू करना। एक मुबल्लिग़ की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो जो लोग हैं जिनको उसने पढ़ाना है दीन को, उसमें से उसूल अक़ाइद को उनके लिए बाज़गू करे। और उसूल अक़ाइद आप जानते हैं, उसमें से पहली चीज़ है तौहीद। तौहीद को लोगों के लिए बयान करे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला वहदहु ला शरीक है। और दूसरी चीज़ खुदावंद मुताल का अदल, कि अल्लाह जो है वो हर काम को अदालत से अंजाम देता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है नबूवत। नबूवत के बाब में जो अनबियाए पिशीन है, जो गुज़र चुके हैं, और हमारे नबी ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और उनकी ख़त्मियत यानी ख़त्म नबूवत हो चुकी है। अब उसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। और उसके बाद बाब इमामत है जो कि मुहिम्मात दीन में से, और उसके बाद माआद यानी रोज़े क़यामत। इसको कहते हैं उसूल, इसको जो है वो उसूल अक़ाइद के नाम से आप बयान कर सकते हैं। ये उसूल अक़ाइद है, यानी 5 जो हमारे उसूल हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ वो है अहकाम इल्ज़ामिया। अहकाम इल्ज़ामिया की तादाद बहुत ज़्यादा है। अहकाम इल्ज़ामिया आप ये कह सकते हैं कि हर चीज़ को जब आप अंजाम दे रहे हैं उसके लिए कोई अहकाम होंगे जिसका अंजाम देना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे नमाज को ले लेते हैं। नमाज के लिए ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे अहकाम हैं। नमाज के मवाने क्या है, किस चीज़ें जो है वो माने बन सकती है, बातिल कर सकती है नमाज को। मिसाल के तौर पे मुस्तहब्बात नमाज कितने हैं, मकरूहात नमाज कितने हैं, मसलन जो नमाज के अंदर मकरूह है, वग़ैरह वग़ैरह, जिसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इस हवाले से भी मरजइयत ने फरमाया कि हत्ता इस हवाले से जो शहीद अव्वल ने किताब लिखी है अल्फिया के अंदर 1000 मसाइल को लिखा गया है जो कि इल्ज़ामी है नमाज के हवाले से। गौर करें कि 1000 मसाइल को वहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद शहीद सानी ने उसकी शरह की है। शहीद सानी ने और दीगर उलमा ने भी उसकी शरह बयान की है। यानी बाकायदा एक बाब है नमाज के लिए जिसका नाम उन्होंने अल्फिया रखा है। और इस हवाले से जो है रोज़े के कितने ज़्यादा मसाइल होंगे, और उसके अलावा जो है वो हज और ज़कात के कितने ज़्यादा मसाइल होंगे, ये जो है इसका आप अंदाज़ा करें। लेकिन एक मुबल्लिग़ के लिए यही है कि
उन चीज़ों को उमूमन चूँकि आज के उलमा ने बयान कर चुके हैं और किताबों की शक्ल में और तौज़ीउल मसाइल की शक्ल में या दीगर अहकाम की कुतुब की शक्ल में ये चीज़ें मौजूद है, अगर उन्हीं जो मशहूर है उनको भी अगर बयान किया जाए तो ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है दो चीज़ें, यानी अव्वल चीज़ जो है वो है उसूल अक़ायद और दूसरी चीज़ है अहकाम इल्ज़ामिया, ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो है अखलाक अहलुल बैत, अखलाक मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम, यानी अखलाकियात को जो अखलाक है आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम का और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही का, इसको इन चीज़ों को भी लोगों के लिए बयान करना भी ये भी ज़रूरी है। और इसकी जो है वो एक ख़ास अहमियत है। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयान की जा सकती है। और आजकल के दौर में बल्कि तमाम दौर में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि बाज़ हमारे सुन्नतों में हम देखते हैं कि बाज़ काम जो है वो हो जाते हैं और लोग जो है वो, अगर एक ऐसा माशरा है कि जिनको पूरी तरीके से अंदाज़ा नहीं है कि ये अखलाकियात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है या नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें गलतियाँ वारिद हो जाती है। मिसाल के तौर पे बाज़ लोग जो है जब ये बदकलामी करते हैं तो वो कहते हैं कि बदकलामी नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम भी इस तरीके से बहतान करते हैं और लोगों को बयान करते हैं। चूँकि लोग भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते तो वो भी ये जहन में उनकी बात आ जाती है कि शायद ये शख्स जो है वो सही कह रहा है। और लेकिन बहरहाल जो अखलाकियात है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के, उसका जो है इन चीज़ों का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। या इसके अलावा जो है बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोगों की अवलीन ज़िम्मेदारी तो यह है कि हमें हमारे अखलाकियात, हमारे तकालीद, हमारी नुक्ते नज़र वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तरह होनी चाहिए। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तरह इंसान नहीं कर सकता, लेकिन इस हद तक हो कि हम जो है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने हर काम में नमूना करार दें। तो ये भी मुबल्लिगीन की ज़िम्मेदारी है, जिसके उन्वान से मरजइयत ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि ज़रूरी और लाजमी है कि हम जो है वो लोगों को आगाह करें ताकि लोग जो है उनको अंदाज़ा हो कि ये अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है और यह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं मज़ीद बयान करना चाहूँगा कि हर शख्स जो जिस फील्ड में भी है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने लिए नमूना करार दे सकता है। हर एक मोड़ पे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने लिए नमूना करार दे सकता है। तो हमारी एक ज़िम्मेदारी ये है कि इन लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचा दिया जाए ताकि ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह रहे। ये एक यानी इस कदर ये लाज़मी और ज़रूरी है कि गोया कि उस वक्त जब इमाम को कत्ल करने के लिए लोग आए हैं, लेकिन इमाम जो है वो फरमा रहे हैं कि मैं आप लोगों का हक़ देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को हक़ और बातिल के दरमियान अंदाज़ा हो जाए। और इसके अलावा जहाँ तक खुतबात हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो इनकी तादाद भी बताई कि तकरीबन 30 से ज़्यादा तादाद इसकी है। और अगर इस 30 की तादाद जहाँ सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, बाकायदा एक किताब भी लिखी जा चुकी है इस हवाले से, एक किताब है, किताबचे की शक्ल में है, जहाँ पर खुतबात हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकायदा तस्करा मौजूद है। और उसमें से मिसाल के तौर पे जब हम मदीना से हज़रत तशरीफ़ ला रहे थे तो उस वक्त हज़रत ने जो खुतबा इरशाद फरमाया है वहाँ पर वो मौजूद है। या बाकायदा जो है जब हज़रत जो है पहुँचे हैं मक्का पहुँचे हैं, वहाँ पर क्या खुतबा फरमाया था वो भी मौजूद है। और जो बाकायदा मकामात पर जो खुतबात है जिनकी तादाद जो है 30 या 30 से ज़्यादा है। मशहूर खुतबा जो है, जो मशहूर खुतबा है वो शब आशूरा वाला खुतबा है और रोज़े आशूर का खुतबा है। बहुत ही मुफीद ये एक बहस है और इंसान जो है वो खुतबा हज़रात, इनको जो उलमा हज़रात है इनको हिफ्ज़ कर सकते हैं अरबी में और फिर उसकी जो है शरह बयान कर सकते। नहायत ही इसमें जो है वो नुकात मौजूद है कि
خود مرجعیت نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ان خطبات کو بھی گویا کہ نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ اس حوالے سے جو ہے کوشش کرے کہ ان خطبات کو بھی لوگوں تک پہنچائے کلام اہل البیت علیہم السلام کے طور پہ۔ یعنی یہ چونکہ بہت سارے، البتہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی ہے، یقیناً گفتگو ہوئی ہے، لیکن زیادہ جو ہے ان کے اوپر بحث کی ضرورت ہے۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات، اچھا اس عنوان سے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مثال کے طور پہ جب خطبوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہماری نظر جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں پر چلی جاتی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کلام امیر المومنین علیہ السلام، یا بعض جو ہے انہی کلام میں سے جو مختصر چیزوں کو اٹھایا گیا ہے غرر الحکم کے نام سے، یا ہمارے پاک اور ہند میں جو ایک کتاب ہے نہج الاسرار کے نام سے، کوکب الدری بھی ایک کتاب ہے۔ بہرحال اس میں سے کس قدر جو ہے وہ صحیح ہے، کس قدر ان کی سندیت جو ہے وہ صحیح ہے، کس قدر سندیت صحیح نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال خطبات حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب خطبات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ایک کتاب جو ہے رسول اللہ کے خطبات پر بھی نہج الفصاحہ کے نام سے، نہج الفصاحہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایک کتاب موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ، اور یہ سارے خطبات ہیں۔ تو سید المرجع نے ایک اس طرف بھی ہمیں متوجہ فرمایا کہ گویا ہم جو ہے خطبات سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پڑھیں اور لوگوں تک اس کو جو ہے وہ پہنچائیں۔ تقریباً ہمارا وقت جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 2 دن مزید بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، کوشش کریں گے کہ علماء کرام کو بھی ہمارے اس مجلس میں انشاءاللہ مدعو کریں، اور انشاءاللہ العزیز ان کے بھی نظریات اور جو شرح ہے اس خطاب کی وہ انشاءاللہ العزیز ان سے بھی ہم لے سکے اور انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں بیان کر سکے۔ البتہ جو خطاب ہے اس کی اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے، ضرور جو ہے آپ انشاءاللہ وقت نکالیں گے اور اس خطاب کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ غور و فکر فرمائیں گے، اور اس حوالے سے کہ یقیناً اگر ہم جو ہے اگر حوض علمیہ سے بھی ہم وابستہ نہیں ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ضرور ہم کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، مخصوصاً سوشل میڈیا پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر انسان کسی فیلڈ سے منسلک ہے تو وہاں پر بھی خدمت کر سکتا ہے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔